Assalamu alaikum. This lecture is the first lecture of chapter 9 of our textbook, that is Electronic Devices and Circuit Theory by Robert Del Volstead. This deals with the frequency response of amplifiers. My name is Dr. Amir Shahzad. Uh, Before we start, we have to introduce what the frequency affects to any electronic device. Every electronic device is frequency sensitive. That is, response of every device is based on the frequency uh, we applied on this, that is frequency of the input signal. Analysis in chapter 8 was limited to mid-range frequency of the input signal, that is the gain equations of gain we found in chapter 8 was for mid-range frequencies. Now this chapter will introduce the response of amplifiers against low frequencies and against high frequencies. So in case of low frequencies, we need to see the effect of capacitors, which are actually network capacitors, on the gain of amplifier. And for the case of higher frequencies, there are certain capacitive effects or capacitive elements which are introduced in higher frequencies, and they will have some effect on the gain of amplifier. So before we go into detail of frequency effect on the response of amplifiers, we need to revise some scientific notations and or scientific equations which we are going to use in this chapter. So first one is logarithms. Since we will do the analysis at wide frequency range, the logarithmic scale will be defined and used throughout the analysis. Now we are dealing with large range of frequencies, that is from very low frequencies to very high frequencies. So we will be using logarithmic scale. That is uh, why we use logarithmic scale, because this scale can represent large range of values into smaller numbers. The relationship between variables for a logarithmic function is given in this equation. Let's suppose we have three variables. These are a, b and x. If a is equal to b power x, in log form you can write the relation of a, b and x like this. X is equal to log of a with the base b. तो ये इस तरह के अगर हमारे पास a की वैल्यू a is equal to b power x हो, that is 10 power 2, it means b is 10 and x is 2, so a is equal to 100. तो इसको आप log की फॉर्म में x is equal to log b base of log a to the base b, या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं log of 10 of 100 या log 100 of base 10. So this will be equal to 2. तो log की दो डिफरेंट फॉर्म्स इसमें है. कॉमन लॉगरिथमिक फॉर्म विच इज बेस 10 log, और नेचुरल लॉग जो होता है वो log टू द बेस e होता है. डेसिबल स्केल हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पावर ऑफ any system, or you can also represent the gain of an amplifier in decibels. तो इसमें एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं कि the power and the audio levels are related on logarithmic scale. That means अगर आपके पास एक पावर एम्पलीफायर है और उसकी हम कितनी पावर इंक्रीज करेंगे कि एक्चुअल ऑडियो लेवल्स कितना इंक्रीज होगा, तो इनका रिलेशन पावर और ऑडियो लेवल्स का लॉगरिथमिक स्केल में है. फॉर एग्जांपल
अगर जो एम्पलीफायर है उसकी पावर 4 वॉट से 64 वॉट इंक्रीज हुई तो एक्चुअली ये 16 इंटू 4 ये पावर इंक्रीज हुई, लेकिन ऑडियो लेवल इस फैक्टर से इंक्रीज नहीं होगा। ऑडियो लेवल इंक्रीज होगा दैट इज इक्वल टू 3, जो कि लॉग स्केल में आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4 इक्वल टू 3। The term Bell is derived from the surname of Alexander Graham Bell। तो Bell एक यूनिट है, लॉगरिथमिक यूनिट है ऑफ द गेन। तो अगर आप जो पावर गेन है उसको डिफाइन करना चाहें इन टर्म्स ऑफ बेल, तो इसकी इक्वेशन ये होगी log 10 of P2 over P1, where P1 is the reference power and P2 is the output power of that system। It was found that Bell was too large unit of measurement। तो हमने एक डेसिबल स्केल यहाँ पे डिफाइन करना है। डेसिबल स्केल क्या है कि 10 डेसिबल इज इक्वल टू 1 बेल। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये बनती है गेन इन डीबी, दिस वन वाज गेन इन बेल। सो अब आपके पास गेन इन डीबी मीन्स गेन इन डेसिबल को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं 10 इंटू लॉग 10 ऑफ P2 ओवर P1 मीन्स पावर में कितना गेन आया इन टर्म्स ऑफ dB। यू कैन डिफाइन दैट विद दिस इक्वेशन। और अगर आपके पास जो रेफरेंस पावर है वो 1 मिली वॉट हो, दैट इज फॉर 600 ओम फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हैं log 10 log 10 ऑफ P2 ओवर 1 मिली वॉट। तो इस स्केल को हम कहते हैं dBm, dB और m फॉर मिली वॉट। तो ये स्केल्स हैं इन टर्म्स ऑफ लॉग, बेल, डेसिबल एंड dBm। अब अगर जो गेन हम डिस्कस करते आए अभी तक दैट वाज वोल्टेज गेन, तो अगर आप पावर को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कन्वर्ट कर दें, यू कैन हैव P2 सिंस P इज इक्वल टू V स्क्वेयर बाय R, तो P2 को आप V2 स्क्वेयर ओवर RI इज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दैट सिस्टम, इस टर्म में लिखे, और P1 इज इक्वल टू V1 square over RI is again the input impedance of system, so this will be same, but since power is amplified or increased, or you can say for higher gain the P2 should be higher। so इसी तरह आपके पास V2 की वैल्यू और V1 की वैल्यू ये डिफरेंट हो सकती हैं, तो दैट इज वाई RI यहाँ पे कैंसिल आउट होके ये गेन इन dB इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस आपके पास आ जाता है 10 log 10 V2 ओवर V1 स्क्वेयर। सो ये स्क्वेयर इधर लॉग के साथ अगर है तो दैट बिकम्स 2 इंटू 10 20 log 10 V2 ओवर V1। V2 over V1 is actually gain in voltage, that is voltage gain। तो ये dB स्केल में आपके पास वोल्टेज गेन को आपने डिफाइन कर लिया 20 log 10 V2 over V1। जबकि अगर गेन पावर की फॉर्म में है तो आप उसको 10 log 10 P2 over P1 लिखते हैं। तो इसका एक यूजेज जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो कैस्केडेड सिस्टम में है। In case of cascaded system, we know that gain of all individual stages we need to multiply them to get the overall or total gain of that system। तो अगर ये एब्सोल्यूट स्केल में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं गेन, तो अगर आप उनको लॉग की फॉर्म में लिखें, इस जो भी गेन है फॉर एवरी स्टेज यू नीड टू राइट इट डाउन इन द टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक फॉर्म, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। तो इन अदर सेंस
आप टोटल गेन इन डीबी फाइंड करना चाहें तो आप इंडिविजुअल स्टेज का गेन इन डीबी उन सबको आप ऐड करेंगे, यू विल गेट टोटल गेन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. Table 9.2 in the book suggests that ये टेबल 9.2 टेक्स्ट बुक का एक्चुअली कंपैरिजन यहाँ पे मेंशन कर रहा है. टू हैव एन एब्सोल्यूट वोल्टेज गेन दैट इज वी नॉट ओवर वी आई, उसको हम डीबी लेवल में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू दिस इक्वेशन. इफ यू हैव गेन ऑफ 0.5 तो डीबी लेवल में वो -6 dB होगा. You have a gain of 0.707 that will be -3 in dB. If you have gain of 1 that is V naught is equal to Vi, आपके पास dB स्केल में ये 0 होगा. Similarly if you have gain of 10,000 तो आपके पास dB लेवल में आपके पास ये वैल्यू होगी 80 dB. ये इंक्रीज करते जाएं तो इधर आपके पास लिमिटेड नंबर्स आ रहे हैं, तो आप एक्चुअली हायर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम फ्यू लोअर नंबर्स, या आप कह सकते हैं कि एक लोअर रेंज ऑफ नंबर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यही एडवांटेज है यूजिंग लॉग स्केल और डीबी स्केल. Now, as we said earlier, that in this chapter we will discuss the frequency response of amplifiers, both for BJTs and FETs. But since we are dealing with FETs for electronics too, so we will focus on frequency response of FET amplifiers. So, ये डायग्राम या फिगर आपको शो करती है जनरल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. So, in chapter 8 we have discussed the gain of amplifier for the mid-range frequencies. Generally हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि for the AC analysis जो नेटवर्क कैपेसिटर्स होते हैं CC, CS और CE, उनको हम शॉर्ट सर्किट कंसिडर कर देते हैं, और considering frequency is too high that the impedance is 0 or approximately 0, so that we can replace them with a short circuit. कपलिंग कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर जो होते हैं उनको हम फॉर द मिड रेंज फ्रीक्वेंसी शॉर्ट सर्किट कंसिडर कर लेते हैं. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो then the impedance or reactance of these capacitors is no more equal to 0 or approximately equal to 0, तो हम इनका इफेक्ट देखते हैं फॉर लो रेंज फ्रीक्वेंसीज. इसी तरह हायर फ्रीक्वेंसीज के केस में आपके पास पैरासिटिक कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिव डिवाइसेस एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, दोज आर FET और ट्यूब और व्हाटएवर ट्रांजिस्टर यू आर यूजिंग. तो हायर फ्रीक्वेंसीज पे हमारे पास गेन रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू पैरासिटिक कैपेसिटेंस और एक्टिव डिवाइस कैपेसिटेंस से. तो ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ एम्पलीफायर्स, और इस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज दैट इज लोअर देन सम कट ऑफ वैल्यू. तो इन बिटवीन जो फ्रीक्वेंसीज हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज हैं. So this is the general frequency consideration, that is for mid range frequency we consider gain as 1, and for lower and higher frequencies then these cutoff frequencies gain will be reduced or it will be less than absolute value of 1. ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे गेन क्यों रिड्यूस होता है और हायर फ्रीक्वेंसीज पे गेन कैसे रिड्यूस होता है, कौन से फैक्टर्स
इफेक्ट करते हैं लोअर और हाई फ्रीक्वेंसीज पे, रिड्यूस द गेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। तो इसके लिए बॉडी प्लॉट है, उसके लिए हम शुरू में कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है टू प्लॉट दिस बॉडी प्लॉट। उसके लिए ये फिगर है वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन की। एज वी सेड दैट लोअर फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारे पास जो ये CC, CE एंड CS, these are coupling capacitors and bypass capacitors, ये इफेक्ट करते हैं नेटवर्क की गेन को। तो हमने बारी बारी इनका रिस्पांस देखना है कि ये कैपेसिटर्स किस तरह इफेक्ट करते हैं गेन को, और ओवरऑल इस जो नेटवर्क में ये कहाँ पे इनका जो RC नेटवर्क बनता है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी इनपुट इम्पीडेंस यू कैन डिफाइन इट एज R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू बीटा RE। तो अगर हम इनपुट साइड पे देखें तो उसको इनपुट साइड पे हमारे पास CS जो कि कपलिंग कैपेसिटर है, उसके साथ जो रेजिस्टिव एलिमेंट होगा इनपुट साइड पे, उसको हम इनपुट इम्पीडेंस कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे हमने यहाँ से इनपुट साइड को एक RC नेटवर्क में कन्वर्ट करके यहाँ पे शो किया है इन फिगर 9.16। तो अब ये जो RC सर्किट है, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि हाउ दिस द रिएक्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर will be affecting the gain of this amplifier. So for the higher frequencies हम कंसिडर करते हैं कि जो कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस है XC वो 0 है। इफ यू look at this equation, that is XC is equal to 1 over 2 pi FC। अगर आप F को एक लार्ज वैल्यू इसको कंसिडर करें तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 ओम। तो जब ये रिएक्टेंस 0 ओम हम कंसिडर करते हैं, दैट इज वी कैन रिप्लेस कैपेसिटर विद ए शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो RC सर्किट है, इस पे जो हम इनपुट साइड पे देख रहे हैं कि हम VI अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी वोल्टेज इस रेजिस्टर पे जो एक्चुअली ये RI है ऑफ दिस एम्पलीफायर नेटवर्क, तो उस पे अपियर हो जाती है। दैट इज V0 is equal to VI, because if you apply KVL in this loop you will get V0 is equal to VI। और for the case of zero frequencies or lower frequencies, let's say अगर आप F को 0 हर्ट्ज कंसिडर करें तो कैपेसिटेंस की जो रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट ओम कंसिडर होती है, because putting 0 in this equation will give you infinite value, undefined value। तो इस केस में आपके पास कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट कंसिडर करते हैं। So this case is for DC, that is F is equal to 0 hertz is for DC voltages और DC सिग्नल। उस केस में आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो और क्योंकि इसकी इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है तो हमने इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। इट मीन्स इफ यू अप्लाई KVL you will get V0 is equal to 0। V0 is equal to 0। तो इसको अगर हम इस अपने प्रैक्टिकल सर्किट में इसका मीनिंग या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें देखना चाहें तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे हायर फ्रीक्वेंसीज हैं तो हम कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कंसिडर कर सकते हैं। तो जो भी हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो नेटवर्क पे अप्लाई हो रही है। दैट मीन्स जो हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो इस नेटवर्क पे अप्लाई हो रही है एज इट इज, बिकॉज V0 is equal to VI। तो V0 हम इस जो RC नेटवर्क है उसकी V0
इस नेटवर्क की एक्चुअली इनपुट वोल्टेज होगी। तो लेकिन इस केस में जब आपके पास इनपुट सिग्नल जो अगर डीसी होगा तो उस केस में जो आप इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो नेटवर्क पे अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज V नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स R पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं हो रही, वो तमाम की तमाम वोल्टेज इस ओपन सर्किट पे अपेयर होगी। तो ये हमने एक जो कर्व है ये मेंशन कर रही है फॉर द हायर फ्रीक्वेंसीज आपके पास V नॉट इज इक्वल टू Vi है, दैट मीन्स गेन आपके पास 1 है। इस RC नेटवर्क का गेन आपके पास 1 है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज पे हम गेन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अगर इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लोअर साइड पे आए और हमने ये 0 f इक्वल टू 0 वाला केस डिस्कस किया, दैट मीन्स V नॉट इज इक्वल टू 0, तो गेन आपके पास 0 है। तो इसके दोनों एक्सट्रीम्स हैं हमारे पास, हायर फ्रीक्वेंसीज हायर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जीरो फ्रीक्वेंसी। इसके इन बिटवीन वैल्यूज पे हम हमारा जो एनालिसिस है दैट इज एनालिसिस फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज ऑन द एम्पलीफायर नेटवर्क एक्चुअली। तो हम एक्चुअली इस एरिया में इंटरेस्टेड है लोअर फ्रीक्वेंसीज में, और इसका एनालिसिस हम देखें कि ये गेन की वैल्यू किस तरह ग्रेजुअली रिड्यूस कर रही है। So in between the two extremes, the gain is represented by the following figure. तो इन दोनों एक्सट्रीम पे जो f is equal to let's say infinite और f is equal to 0 के केस जो एक्सट्रीम्स हैं उन दोनों के बीच के जो फ्रीक्वेंसीज हैं उस पे उसको हम इस फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स गेन इज बीइंग रिड्यूस इफ यू रिड्यूस द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये एक्चुअली RC नेटवर्क हमने दोबारा यहाँ पे प्लॉट किया है वेयर वी हैव रिप्रेजेंटेड द इम्पीडेंस और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर विद XC एंड R is here. So for the input side you can write relation of V naught through voltage divider rule like this: V naught is equal to RVI over R plus XC। आप इधर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करें, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। The magnitude of V naught is determined as follows. Since these are bold phases, so it have magnitude and phase वेक्टर की फॉर्म में। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप सिर्फ लिखना चाहें तो दैट विल बी RVI ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो इसमें मीन्स के यहाँ पे जो V नॉट और VI का रिलेशन है इफेक्ट गेन ऑफ दिस RC सर्किट, तो उसको हम यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज आल्सो। सो मैग्नीट्यूड उसका ये इक्वेशन डिफाइन करती है। तो इसमें अगर हम एक स्पेशल केस डिस्कस करें दैट इज R इज इक्वल टू XC। What does this mean? That means ohmic value of this resistance is equal to the ohmic value of XC। उस केस में क्या होगा वो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। R is equal to XC, V naught is equal to RVI over R square plus R square। That means 2R square. It will give you 1 over under root 2 of VI। This will be equal to 0.707 वैल्यू ऑफ द गेन। तो अगर आप यहाँ से VI इस तरफ डिवाइड कर लें, यू कैन डिराइव द रिलेशन ऑफ गेन एट XC is equal to R। So voltage gain actually the magnitude of voltage gain is equal to V naught over VI is equal to 1 over under root 2, that is 0.707। this value we get for XC is equal to R when the ohmic value of these two components are equal। तो इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि हमारे पास गेन की वैल्यू जो कि मैक्सिमम 1 है अब वो 0.707 हो गई, दैट इज 70.7% गेन है हमारे पास।
मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जिसमें एक्सी की वैल्यू आर के इक्वल हो जाती है उसमें हमारे पास गेन की वैल्यू आ जाती है 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें हम फिर फर्दर इसको एलेबोरेट करते हैं। दैट इज एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, और उस एफ को हम एफ एल सी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। दैट इज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू आर। व्हेन एक्सी इज इक्वल टू आर वी हैव the value of frequency when xc is equal to r, we mark that value as fl or lower cutoff frequency। फिर इस रिलेशन से हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये मेंशन थी एफएल, तो इस पे हमारे पास गेन की वैल्यू आ जाती है 0.707। इसकी रिलेशन हमने इस आरसी नेटवर्क से डिराइव कर ली। दैट इज इक्वल टू एफएल इज इक्वल टू 1/2 पाई आरसी। In terms of log, we can write this gain, that is voltage gain, is equal to 20 log 10 of absolute voltage gain. So 20 log 10 of 1/2, since the value of voltage gain is 1/2 here it is mentioned, this will be equal to -3 dB। तो इसको अगर आप ये एब्सोल्यूट की बजाय हमारे पास जहाँ पे लॉग स्केल हो या डीबी स्केल हो तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -3 dB, या गेन हमारे पास अब कितना आ गया -3 dB। तो 1 पे क्या वैल्यू आएगी, इट शुड कम 0। तो ये एग्जांपल है कि जब आपके पास गेन की वैल्यू 1 है एब्सोल्यूट गेन की, तो और V0 is equal to Vi, we will have this log function will give us value 0, that is 0 dB gain। So the gain equation can be written as voltage gain is equal to V0 over Vi, that is equal to R over R minus Jx। ये हमने इसी से ही आप वोल्टेज गेन के Vi को इस तरफ हम डिवाइड कर दें तो यही वाली इक्वेशन एक्चुअली ये है। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं 1/1 minus Jxer, we have divided every term with R, it will become 1/1 minus J, और यहाँ पे हमने Xc को डिफाइन कर लिया ओमेगा C से। It will give us 1/1 minus J 1/omega C R। This is equal to 1/1 minus J into 1/2 pi f C R। तो ओमेगा को भी हमने 2 पाई एफ की फॉर्म में लिख लिया। तो अभी हमने ये एफएल या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की ये रिलेशन डिराइव की थी। दैट इज एफएल इज इक्वल टू 1/2 पाई आरसी। तो 1/2 पाई आरसी को आप एफएल लिख लें तो एंड वी हैव दिस एफ विल बी इन डिनोमिनेटर ऑफ दिस पार्ट। तो आपके पास ये रिलेशन इससे बन जाती है। सिर्फ 1/2 पाई आर सी को आपने एफ एल से रिप्लेस कर दिया। नाउ वी हैव द गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी रिलेशन। इसमें देखें इस इक्वेशन में गेन है और दूसरा फ्रीक्वेंसी है। तो दिस रिलेशन और दिस इक्वेशन विल गिव अस द रिलेशन ऑफ गेन एंड फ्रीक्वेंसी। In the magnitude and phase form, you can write it as 1 over voltage gain is equal to 1/1 plus FL over F whole square into tan inverse of FL over F। ये आपके पास मैग्नीट्यूड की टर्म है और ये आपके पास फेज है। And for the magnitude, when F is equal to FL, इसमें हम मैग्नीट्यूड वाली टर्म में अगर F को FL कंसिडर करें, दैट इज जो F वाला स्केल है, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप FL के इक्वल पुट करें तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। Putting F is equal to FL will give you 1/1 plus
1 square 1 over under root 2 that is equal to 0.707 that is equal to minus 3 dB gain। तो ये गेन यहाँ से हमारे पास ये चीज़ वेरीफाई हो रही है कि अगर आप आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो गेन की वैल्यू 70% होगी या इन टर्म्स ऑफ dB माइनस 3 dB होगी। So in logarithmic form, the gain in dB is 20 log 10 of this magnitude of this gain, that is 1 over 1 plus FL over F. So expanding this equation, because we want to plot the gain in dB versus frequency, तो इस इक्वेशन को हम एक्सपेंड करते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। जब ये डिनोमिनेटर टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं तो इट विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव साइन इधर 20 के साथ आ जाएगा, फिर ये 1/2 भी इधर 20 के साथ आ गया, तो log 10 ऑफ 1 प्लस FL ओवर F, तो ये आपके पास स्क्वायर टर्म है। तो अगेन ये 20 और ये 2 कैंसिल आउट होके -10 यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा, log 10 ऑफ 1 प्लस FL ओवर F स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को, जो कि फ्रीक्वेंसी और गेन इन dB का रिलेशन है, इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। फॉर द फ्रीक्वेंसीज वेयर F इज far less than FL, what does this mean? We are dealing with the frequencies that are far less than this cutoff frequencies. Again, if you come to this figure, that means we are dealing with the frequencies which are far less than this cutoff frequencies. So, or FL over F square is far greater than 1. The equation can be approximated with this equation, that is gain in dB is equal to -10 log 10 of FL over F over square। क्योंकि ये वाली जो सेकंड टर्म है फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, ये सेकंड टर्म जो है वो इससे काफ़ी ग्रेटर हो जाती है, तो हम फिर यहाँ पे 1 को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपके पास आ गई विच गिव यू द रिलेशन ऑफ गेन इन dB टू फ्रीक्वेंसीज। तो अब आपके पास इक्वेशन आ गई। अगेन ये 2 की टर्म जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आके इसको 10 को 20 बना देगी। सो गेन इन dB इज इक्वल टू -20 log 10 ऑफ FL ओवर F। मजीद ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, बट दिस इज फॉर द कंडीशन ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज, लोअर देन दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो ये इक्वेशन वैलिड है फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज। तो अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई जो गेन और फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर रही है। वी कैन प्लॉट ए कर्व विच इज कॉल्ड बॉडी प्लॉट। तो हम देखेंगे इसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो कंसिडरिंग फ्यू values or assuming few values, that is if you assume F is equal to FL, that is FL over F is equal to 1, this equation will give you -20 log 10 of 1 equal to 0 dB, and when F is equal to half of FL means कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के हाफ इक्वल है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो उस टाइम पे आपको ये रिलेशन -6 dB वैल्यू देगी। सिमिलरली if you have F is equal to 1 over 10, the gain will be -20 dB. Now if you want to plot these numbers, this will give us this plot of which we call body plot of magnitude versus frequency. That means the piecewise linear plot of asymptotes and associated breakpoint is called a body plot of magnitude versus frequency. अब हमारे पास एक ये स्केल है जो कि फ्रीक्वेंसी का स्केल है और दूसरा स्केल जो है वर्टिकल स्केल, दैट इज गेन इन dB। हम इन पॉइंट्स को जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में कंप्यूट किए थे,
दैट इज एट f इक्वल टू fl मीन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे गेन की वैल्यू 0 है। तो हमने ये 0 पे ये पॉइंट अगर मार्क करें, सेकंड पॉइंट half of fl when f is equal to half of fl gain है -6 dB, that is at f is equal to fl by 2 gain की वैल्यू -6 dB है, ये सेकंड पॉइंट है। फिर f is equal to 1/4 of fl मीन्स कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का 1/4 वैल्यू है इनपुट फ्रीक्वेंसी की, तो आपके पास गेन की वैल्यू है -12, तो -12 dB आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। एंड द फाइनल पॉइंट इज व्हेन f इज इक्वल टू 1/10 ऑफ fl, तो आपके पास गेन की वैल्यू है -20 dB, तो 1/10 आपने मार्क कर दिया, दैट इज -20 dB। If you connect these points you will get a straight line, और फिर इस 0 dB पे अगेन आप एक और स्ट्रेट लाइन इस तरफ मेंशन करें, क्योंकि fl से बियॉन्ड हम कंसिडर करते हैं कि गेन की वैल्यू 1 है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, दिस इज वैलिड ओनली फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर देन fl। So with these two asymptotes you can approximate the frequency response of amplifier। तो ये आपके पास एक दो स्ट्रेट लाइंस या दो एसिम्पटोट से आप अप्रोक्सीमेट करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को। ये वाली जो कर्व लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन फ्रीक्वेंसी बाय फैक्टर ऑफ 2, दैट इज जब फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है इक्वलेंट टू 1 ऑक्टेव रिजल्ट इन 6 dB चेंज इन रेशियो, मीन 6 dB गेन रिड्यूस हो रहा है, 0 से 6 dB गेन आ रहा है अगर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के हाफ है, एज शोन इन दिस फिगर। एंड इफ फ्रीक्वेंसी बिकम 1/10 ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास जो गेन है 20 dB रिड्यूस हो जाता है। तो ये दो एसिम्पटोट, एक ये स्ट्रेट लाइन जो कि इन पॉइंट से हमने प्लॉट की, और दूसरी स्ट्रेट लाइन इस fl से इस एक्सेस के अलोंग जो कि 0 dB के अलोंग है, ये आपको अप्रोक्सीमेट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दे देती है। इसके बाद एक चीज आप इधर नोट करें कि दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट रिस्पांस बिकॉज दीज आर एसिम्पटोट्स। तो एक पॉइंट जहाँ पे ये एरर बहुत ज़्यादा है वो है एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इफ यू गो बैक एंड सी व्हाट वी हैव डिफाइंड एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, at cut off frequency we have gain of -3 dB, लेकिन ये इक्वेशन आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे गेन की वैल्यू 0 dB मेंशन कर रही है, बिकॉज it was assumed that we are dealing with frequency for less than f, not f equal to fl। तो इस केस में ये आपको पॉइंट पता है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे गेन की वैल्यू आ जाती है -3 dB। तो ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क किया, और इसी के लॉन्ग अगर ये कर्व आप प्लॉट करें विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट विच इज ब्रेक पॉइंट and continue along this asymptote, this will be the actual frequency response of system। तो ये आपके पास actual frequency response ये ब्लैक जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रही है। अप्रोक्सीमेट रिस्पांस ये ब्लू लाइन, ब्लू जो कर्व है दो एसिम्पटोट से हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, वो रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमारे पास ये ब्लैक डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। So we will be implementing this whole theory, or you can say whole setup for low frequency response of FET amplifiers. So if you are given the value of gain, you can find the value of frequency, or the gain at any frequency can be determined from the frequency plot in the following manner,
दैट इज गेन इन dB की ये रिलेशन है 20 log 10 ऑफ V नॉट ओवर Vi। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, गेन इन dB ओवर 20 log 10 of V naught over Vi, that is gain equal to V naught over Vi equal to 10 raised to power gain in dB by 20। तो ये जो हमने log की रिलेशन या साइंटिफिक नोटेशन ऑफ log हमने डिस्कस की थी, आप इस रिलेशन को ये जो वेरिएबल्स की रिलेशन है आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, log को इन्वर्स करके। तो गेन अगर आपको किसी भी फ्रीक्वेंसी पे गेन की वैल्यू फाइंड करना हो जो कि एब्सोल्यूट गेन है और डीबी स्केल में आपके पास गेन गिवन हो, तो यू कैन फाइंड दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गेन विद दिस रिलेशन। फॉर एग्जांपल, इफ गेन इज गिवन एज -3 dB, तो आपके पास एब्सोल्यूट गेन की वैल्यू आएगी पुटिंग gain is equal to -3 dB. Voltage gain will be V naught over Vi, that is equal to 10 raised to power gain in dB is -3 given over 20. So this will give you 0.07 as expected. So absolute value में हमारे पास gain की वैल्यू 0.707 होती है और dB स्केल में हमारे पास ये वैल्यू -3 dB होती है। ये वैल्यू किस पॉइंट पे आती है? एट इक्वल टू FL या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। नाउ द फेज एंगल थीटा इज डिटरमिन्ड फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ FL ओवर F फॉर द फ्रीक्वेंसीज विच आर फॉर लेस देन FL, दैट इज लोअर फ्रीक्वेंसीज, उस पे आपके पास थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के करीब आती है। फॉर इंस्टेंस, FL is equal to 100 of FL means F की वैल्यू 1/100 of FL है for less than FL. So putting this value in this relation will give you tan inverse of 100, that is equal to 89.4 degrees. फेज की वैल्यू फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज में आ गई approximately equal to 90, and for F is equal to FL means at cutoff frequency phase angle will be 45 degrees, and for F4 greater than FL means for high frequency the angle will be approximately equal to 0. Okay, this is the end of first lecture of discussing frequency response of amplifiers. In next lecture we will study the lower frequency response of FET amplifier. Thank you very much. I hope you understood this lecture. Thank you.